یہ آزادی ہے، مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے دنیا۔ کیا کریں جو حضور نے کہا ہے، کیا نہ کریں جو حضور نے کہا ہے۔ کام کرنے سے پہلے مسلمان کو سوچنا ہے یہ حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، لیگل ہے یا انلیگل ہے، یا گڈ ہے یا بیڈ ہے، رائٹ ہے یا رانگ ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ مفید ہے مضر ہے، یہ تو مسلمان کو سوچنا ہے۔ ہمیں یہ پینا ہے یہ نہیں پینا ہے، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ جو قوانین کے بندھن میں ہو اسی کو قید خانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہاں تو قیدی بن کے رہ، آزاد بن کے جو چاہے سو مت کھا، آزاد بن کے جو چاہے مت پہن، مصطفیٰ کے ضابطے کی روشنی میں زندہ رہ۔ 70 سال 70 منٹ ہے، 70 منٹ قیدی بن کے رہ، آزاد بن کے مت رہ، قیدی بن کے رہ۔ جیسے ہی موت آ کے جسم کا رشتہ روح کا جدا ہو جائے گا، آخرت میں پہنچو گے، سونے کا مکان تیرے لیے، حور تیرے لیے، شہد کی نہریں تیرے لیے، دودھ کی نہریں تیرے لیے، شرابن طہورا کی نہریں تیرے لیے، خدا کا دیدار تیرے لیے۔ یہاں 70 سال مطلب 70 منٹ اپنے آپ پہ سیلف کنٹرول کر کے رہ۔ آنکھوں کو بچا، زبان کو بچا، کان کو بچا، شرمگاہ کو بچا۔ مصطفیٰ نے کہا ہے جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، یا زبان کی سرکشا کی ضمانت دے دے، شرمگاہ کی سرکشا کی ضمانت دے دے۔ حضور فرماتے ہیں میں یزمن لی ما بین رجلی و ما بین لحیی ازمن لہ الجنہ۔ مصطفیٰ کہتے ہیں جو دو ٹانگوں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے تو اس کی سرکشا کی ضمانت مجھ کو دے دے، اس کو غلط استعمال نہ کرے، اور دو جبڑوں کے بیچ میں جو زبان ہے اس کی سرکشا کی ضمانت مجھ کو دے دے، تو جنت کے مالک کہتے ہیں ازمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں نکلا کہ دنیا میں غیبت کرے، زبان سے چغل خوری کرے، جو جھوٹ بولے، فضول باتیں گڑگڑ بولتے رہے۔ بولنا بہت بڑا کمال کی بات ہے۔ شادی کی محفل میں بیٹھے 2 گھنٹے تک بڑبڑ کر رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے 3 گھنٹے سے بڑبڑ کر رہے ہیں، اس کی بات اس کی بات اس کی بات، عبداللہ کی بات، فلاں کی بات، چینا کی بات، دنیا بھر کی بات، غیبت شکایت کریں۔ جتنی دیر دوسروں کی بات کرے گا، صاحب چبا رہے ہیں رجنی گندھا 5 گھنٹے سے، چبا رہے ہیں صاحب رجنی گندھا 5 گھنٹے سے۔ میں نے بنارس کے مفتی کو کہتے ہوئے سنا تھا، میں نے کہا مولانا آپ پان کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ مفتی اعظم ہند بھی پان کھاتے تھے، اعلیٰ حضرت بھی پان کھاتے تھے، مفتی اعظم ہند پان کھاتے تھے، ایک پان رکھ لیا، وہ پان 5 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد دیگر نکالتے تھے، پان بالکل ہرا رہتا تھا۔ ایسا نہیں کہ پان کھایا چپڑ کیا اور وہ بادام رکھا اور پھٹافٹ پھول پھینکتا رہا، اور کچھ وہاں گرا اور کچھ کپڑے میں گرا، کچھ پھول داڑھی میں لگا، تاکہ سب ڈائریکٹ پان کھا رہے ہیں۔ وہ 5 گھنٹے کے بعد بھی پان نکالتے تھے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پان بالکل ہرا نکلتا تھا، ایک طرف رکھ دیا گیا چونکہ اس میں چونا ہوتا ہے۔ پان کے پتے میں بھی کچھ فزیکل بینیفٹ ہے، اس سے کیلشیم ملتا ہے، دانت مضبوط ہوتا ہے، وہ رکھا۔ لیکن آج کل لوگ جو پان کھا رہے ہیں، میں نے پوچھا مفتی صاحب سے آپ پان کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ وہ کہا مولانا شہریار میں جتنی دیر تک پان چباؤں گا اتنی دیر میں 50 بار درود پڑھوں گا، میں 50 بار کلمہ پڑھوں گا۔ کتنے تھن ہے اس کی زور، یہاں چپر شادی میں باتیں، مہمان ہے اس میں باتیں، صاحب گاڑی میں باتیں، دھام ملاقات وہاں باتیں، خاموش رہنا کوئی نہیں جانتا۔ حضور کہتے ہیں من سمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ حضور کہتے ہیں جو اللہ رسول آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا اور لِيَصْمُتْ، یا تو اچھی بات بولے وہ چپ رہے۔ بے شمار طلاقیں ختم ہو جائیں گی اگر میری ماں بہن بیٹی زبان پہ قانون کا تالا لگا دے، خاموشی کا تالا لگا دے، وہ باتیں کم کرے، ضرورتاً باتیں کرے۔ ایسا نہیں کہ شوہر بیچارہ 12 گھنٹے کھیت میں ہل چلا کے گھر آیا ہے، اب ان کے سامنے دسترخوان بچھا کے کھانا دے دیا اور بیٹھ کے پنکھا جھیل رہے ہیں، اب ماں کی شکایت، چچی کی شکایت، باپ کی شکایت، بھائی کی شکایت۔ وہ بیچارہ مرد تو صبر کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، وہ تو صبر کر کے کھانا کھا لیتا ہے، ورنہ تم جو اس کے جذبات کو بھڑکاتی ہو، اس کے بدن میں نفرت کی آگ لگاتی ہو، ایک بیٹا کو ماں سے دور کرتی ہو، یہ بتاؤ کتنا خطرناک کام ہے۔ 50 دن تو تیری بات سہ لے گا، 51ویں دن وہ تجھ کو مار کے گھر سے باہر نکال دے گا، طلاق دے دے گا۔ وہ بھلے ہی بظاہر وہ ماں کا بہت بڑا وفادار نہ ہو، لیکن جس دن خون رنگ لائے گا، بلڈ رنگ لائے گا کہ ماں کا بلڈ بچے کے جسم میں ہے، جس دن ماں کی ممتا یاد آئے گی تو اس دن تجھے گھر سے باہر نکال کے وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا، چونکہ تجھ کو نکالے گا تو جہنم نہیں ملے گا، ماں اگر نکال دیا تو ماں کے ناراضگی سے جہنم ملے گا، کیونکہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت پوشیدہ ہے۔ اسی لیے اپنے شوہر کو زیادہ بھڑکاؤ مت، یہ باتیں وہ باتیں، اس کی شکایت اس کی شکایت، فلانا
ही नहीं पचता है जब तक ये गीबत न करे, शिकायत न करे। फोन पे बेचारा 8 घंटे नौकरी करता है फैक्ट्री में सऊदी अरब में, 4 घंटे ओवर टाइम लगाता है ताकि 5 साल काम करे, एक घर बना ले, छोटा मोटा कारोबार अपने घर में डाल ले, अभी उसके बाद घर जाए ताकि आराम से बाल बच्चों के साथ रह करके जिंदगी के दिन गुजारे। वो बेचारा वहां 16 घंटे काम करके आया है सोने के लिए। अब यहाँ से फोन करके तुम्हारी माँ ऐसा बोली, तुम्हारी बहन ऐसा बोली, तेरी फूफी ऐसा बोली, तेरी चाची ऐसा बोली, तेरा खानदानी खराब है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, अब मैं चली जाऊंगी। ये बता दे कि आज जो तलाक वाक़ हो रही है, आज जो लड़ाई झगड़े का माहौल है, इसी जबान की वजह से समाज में लड़ाई झगड़े हैं, इसी जबान के बेलगाम होने की वजह से। मुस्तफा क्या कहते हैं? जो जबान की सुरक्षा की जमानत दे दे, जहां हक बोलना है वहां चोर बन के रहना है, जहां नहीं बोलना है वहां साहब बातें करते रहना है, जहां वक्त क़याम का टाइम आया वहां बैठ जाना है, जहां सजदे का टाइम आया वहां रुकू कर देना है। ये ना झुक गया नादान सजदे में, जब वक्त क़याम आया, क़याम का अलग टाइम है, सजदे का अलग टाइम है, बैठने का अलग टाइम है। जहां बोलना जरूरी है वहां खामोश रहे, वह गूंगा शैतान है। जहां हक बोलना है, जहां सही बोलना है, अगर वहां कोई चुप रहा वह गूंगा शैतान है, हदीस की ज़बानी। और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां अगर कोई बोल के माहौल को खराब करता, आग लगाता है, वो भी शैतान है, बोलता हुआ शैतान जो फितने को हवा देता है। हमारी माँ बहन बेटियां इसी तरह जहां बोलना है वहां नहीं बोलेंगे, जहां नहीं बोलना है वही बोलेंगे। जबान को कंट्रोल में रखिए। अकलमंदी बोलने में नहीं है, अकलमंदी खामोश रहने में है। अल्लाह ने एक जबान दी है, 2 कान दिए हैं ताकि बोले कम, सुने ज्यादा 2 कान है, बोले कम 1 जबान है। आज तलाक दूर हो जाएगी, तकरार खत्म हो जाएगी, जंग खत्म हो जाएगी अगर आदमी मुस्तफा की हदीस पर अमल करे। आज गांव में आग लगी है, क्यों? साहब फला मुसलमान का बेटा फला हिंदू की लड़की को लेके भाग गया, फला हिंदू का बेटा फला मुसलमान की लड़की को लेके भाग गया। अब दोनों गांव में आग लगी है, शहर जलता है, गांव जलते हैं, बाजार में आग लगती है, सैकड़ों दुकानें जलती है। एक लड़के का गलत कदम उठाने की वजह से सारा समाज जलता है, वह दंगे की आग भड़कती है, कई गांव जलकर राख होते हैं और कितने नौजवान मर जाते हैं। कानून को हाथ में नहीं ले रहा है। जब मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान के कानून और ज़ाब्ते को मानना है। अगर हमारी शरीयत के खिलाफ कोई काम होता है तो उसका तरीका नहीं कि कर लिया पुलिस वाले को फोन दिया, नहीं, उसका तरीका यह है या अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, हमें वहां जाना है। उसके अगर चाहे वो जुल्म करे वो जाने, मगर हमें तो अदालत के दरवाजे को खटखटाना है। एक तरफ 1 लाख पुलिस खड़ी है, हम एक तरफ 1000 हैं। अगर हम पुलिस वाले पे पत्थर मारने लगे और गोली से भूनकर हमारे सारे बच्चों को काट के मार दिया, मेरे घरों को बुलडोजर से तो साफ दफन कर दिया, ये बताएं कि कौन सी अकलमंदी है, यह कौन सी दानिशमंदी है? हाँ, जब बगैर जिहाद के कोई चारा न रहे। अब इस्लाम बचाने, मस्जिद बचाने, घर बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए अब सिर्फ एक रास्ता रह गया है, जिहाद। तो फिर वहां पे सब कुछ लुटा दे। वहां जो भागेगा मैदान जंग से वो भगोड़ा है, न कोई फर्ज कबूल होगा, न कोई नफल कबूल होगा। वहां जान दे, शहादत का जाम पिए। लेकिन ऐसा नहीं कि सांप के मुंह में हाथ दे दे और मर जाए तो हम शहीद हो गए, नहीं। सांप अगर अचानक काट लिया और बंदा मर गया तब वो शहादत का मर्तबा पाएगा। पानी में छलावा के डूब के मर जाए वो बुरी मौत मरा, जहन्नमी है, खुदकुशी करना हराम है, वो हराम काम किया। लेकिन अगर कोई पानी से रास्ता तय कर रहा था, बीच पानी में गया, भूचाल आया और इत्तेफाक से वह डूब गया, ये शहादत की मौत मरा। अब किसी ने बदन पे पेट्रोल छिड़क लिया, आग लगा ली, वो मर गया, ये खुदकुशी है, खुदकुशी करना हराम है। लेकिन कोई घर में था, अचानक आग लग गई, सिलेंडर फट गया, आग लग गई, उसी में झुलस के मर गया, शहादत की मौत मरा। तो दीवार अचानक खड़ा था, दीवार गिर गई, मर गया, ये शहादत की मौत मरा। लेकिन कोई आग लगा ले, पानी में डूब जाए, गोली जहर खा ले, फांसी के फंदे पर लटक जाए, वो बुरी मौत मरा, वो खुदकुशी हराम है, वो मरा। अब हम जब जानते हैं कि सामने 50 लोग हैं, मैं 5 आदमी हूं, उनसे टकराने का मतलब है खुद अपनी जान दे देना, अपने आप को तबाह बर्बाद कर देना, और फिर अपना जाना तो जाना, और फिर हम पूरे शहर को तबाह करने का जरिया बन जाना। वाला तुल्कू, अपने आप को तबाही के हाथों मत डालो, अपने आप को सांप के मुंह में मत डालो। सांप पीछे से आके काट लिया, शहादत की मौत। अगर सामने सांप के मुंह में हाथ डालोगे, मर गए, तो फिर तुम खुदकुशी की मौत मरे, सीधे जहन्नम जाओगे। उसी तरह से गलत फैसला समाज को तबाह कर देता है। एक लड़का किसी लड़की का मुंह देखा, नहीं इससे हम प्यार करते हैं, इससे हम शादी करेंगे, हमने इसको नेट के जरिए मोहब्बत की है। अब साहब ये है अंसारी, वो है बरहमल की बेटी, नहीं मोहब्बत हो गई है, मैं जान दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं खा जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, हम उसके लिए पैदा हुए हैं।
वो नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। ये सारी बातें वहां होती हैं जहां कोई रूटीन ऑफ लाइफ नहीं है, सिस्टम ऑफ लाइफ नहीं है, जहां मकसद हयात नहीं है। जहां मकसद हयात नहीं है, खूब खाना, खूब सोना, खूब इधर उधर आंखें मारना, जहां मकसद नहीं है, जहां मकसद है जन्नत जाना, अल्लाह को राजी करना, मुस्तफा को मुंह दिखाना, हुजूर की शफाअत हासिल करना, ये बड़ा प्लान तो डीएम बनने से बड़ा प्लान है, प्रधानमंत्री बनने से बड़ा प्लान है, अरबपति बनने से बड़ा प्लान है। इसलिए दूसरी कौमें विदाउट प्लान रह सकती है, मगर जिसके पैगंबर ने जन्नत और आखिरत की बात बता दी, और जो कौम मोमिन हुआ ही इस तरह से है, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, आखिरत के दिन पर, जन्नत और जहन्नम पर। जब जन्नत जहन्नम पे ईमान लाया तो जन्नत की बहारों से बढ़ के दुनिया की कोई बहार नहीं है। तो हमारा सबसे बड़ा प्लान है जन्नत जाना, ईमान बचाना, जन्नत जाने की तैयारी करना। तो जिसका प्लान जहन्नम से बचकर जन्नत जाना हो, एक एक मिनट उसके लिए कीमती हो जाएगा, उसकी बोली कीमती, उसका चलना कीमती, उनका सोना कीमती। और फजूल बातों से बचेगा, फजूल खाने से बचेगा, फजूल पहनने से बचेगा, फजूल घूमने से बचेगा। अगर उसका हर टाइम टेबल सेट हुआ तो जन्नत वहां मिलेगी। मगर लोग कहेंगे चलता फिरता जन्नती अगर देखना हो, ये गुलाम मुस्तफा को देख ले, चलता फिरता जन्नती नजर आएगा। मोमिन का हर काम शेड्यूल्ड होता है, मोमिन का हर काम। क्योंकि मोमिन को भी अब आखिरत पे कमजोर ईमान रहा, कमजोरी का शिकार हो गया, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा देखा जाएगा। या फिर ये भी है कि चलो अब जो कुछ भी करे अल्लाह सब माफ कर देगा। ये सारी कमजोरियों की वजह से काफिरों के बच्चे कम से कम उसको तो मास्टर बनने का प्लान है, वो 10 घंटे पढ़ता है। हमारे बच्चों के ना दुनिया का प्लान है ना आखिरत का प्लान है। इसीलिए बगैर पतवार के नाव की तरह यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ घूमते रहना है। शादी में 50 करोड़ खर्च करना है। आजकल शर्मगाह आजाद हो गई। बच्चे हमारे जाते हैं सऊदी अरब, वहां से डेड बॉडी वापस आ रही है। बच्चे हमारे जाते हैं दिल्ली पंजाब, वहां किसी लड़की से मोहब्बत किया और लड़की के बाप ने उसे काट दिया, उसकी डेड बॉडी वापस आ रही है। माँ बाप बोला था बेटा जबान की सुरक्षा करना, शर्मगाह की सुरक्षा करना, वरना तो डेड बॉडी वापस आएगी। 1400 साल पहले मेरे पैगंबर ने क्या कहा, जो मुझे शर्मगाह की हिफाजत की जमानत दे दे और जो जबान की हिफाजत की जमानत दे दे, जन्नत के मालिक कहते हैं मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। तो शर्मगाह बहके काफिर की ये तो मुमकिन है, मगर एक मुसलमान की शर्मगाह कभी न बहके, न मुश्तजनी करे, न हैंड प्रैक्टिस करे, न साहब जानवरों से सोहबत करे, न तवाइफ के कोठे पे जाए, न किसी पड़ोस की बीवी जिसका पड़ोसी बाहर नौकरी कर रहा हो उस पड़ोसी की बीवी को आंख दिखाकर, उस पड़ोसी की बीवी को मिठाई की पोटली दिखाकर, उस पड़ोसी की बीवी को मोबाइल पे मुस्कुरा करके उसकी इज्जत को लूटना कमाल नहीं है। सारे जानी पूरे हैं, मगर जो पड़ोस की औरत से ज़िना करे उसको दर्दनाक खतरनाक अज़ाब होगा क़यामत के दिन। सारे ज़िनाकार पूरे हैं, मगर बुढ़ा जानी जिसकी उम्र 50 प्लस हो गई उसके बावजूद भी यह ज़िना के लिए उतावला रहता है, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालता है। हुजूर फरमाते हैं सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंज़ुरु इलैहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। मुस्तफा कहते हैं 3 लोग ऐसे हैं जिसको क़यामत के दिन अल्लाह निगाह रहमत से नहीं देखेगा, अल्लाह ताला उस निगाह रहमत से नहीं देखेगा, उसे पाक नहीं करेगा, अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा, उसको गुनाहों से पाक नहीं करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उसके लिए दर्दनाक अजाब है। वह 3 में से एक वो शख्स है कौन, शैखुन ज़ानी, यानी बूढ़ा ज़िनाकार। बूढ़ा ज़िनाकार, वो बूढ़ा ज़िनाकार सख्त तरीन अजाब का मुस्तहिक है। इसलिए ये जवानी में अगर किसी का पांव फिसल जाता है तो चलो उम्र का तकाजा था, ऐसा हो गया, कंट्रोल नहीं कर पाया शहवत के। लेकिन 50 साल प्लस होने के बाद जिसकी ख्वाहिशात कमजोर हो जाती, जो मौत की तरफ ज्यादा बढ़ चुका होता है, अब से आगे उनके लिए बुढ़ापे के बाद कोई और स्टेज नहीं है। बचपन के बाद तो जवानी है, जवानी के बाद बुढ़ापा है, बुढ़ापे के बाद कोई चौथा स्टेज नहीं है। अब सिवाय मौत के कोई स्टेज नहीं है। अब जो मौत के मुंह में पहुंच गया हो उसके बावजूद इसकी शर्मगाह बहकी हुई है, इसकी ज़बान आजाद है, इसकी आंखें आवारा हैं, इसीलिए उस पर दर्दनाक अज़ाब होगा। सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाह,
اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے بات نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اسے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، نگاہ رحمت سے اس کی طرف نہیں دیکھے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک ہے بادشاہ ظالم، بادشاہ کذاب، ملک الکذاب، جھوٹا بادشاہ، جو بادشاہ وعدہ کچھ کرتا ہو اور اس کے خلاف کام کرتا ہو، کہتا ہو سڑک بنا دوں گا، سڑکوں کو صاف ٹوٹی کر دیتا ہو، کہتا ہو بجلی 24 گھنٹے دوں گا، بجلی کو گل کر دیتا ہو، جو کہتا ہو میں سب کو انصاف دلاؤں گا، نوکری دلاؤں گا، سبوں کو بے روزگار کر دیتا ہو، جھوٹا بادشاہ۔ چونکہ رعایا کی امیدیں بادشاہ سے وابستہ ہوتی ہے، اور جو وشواس کا خون کرے، جو انصاف کا خون کرے، اسے تو دردناک عذاب ہونا چاہیے۔ تو ملک الکذاب، جھوٹا بادشاہ، اسے اللہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب دے گا۔ اور دوسرا شخص ہے وہ شیخ الزانی، بوڑھا زناکار، اللہ اسے خطرناک عذاب دے گا۔ اور تیسرا شخص ہے وہ کیا ہے؟ وہ گھمنڈی فقیر، گھمنڈی فقیر۔ وہ تیسرا شخص وہ ہے جو گھمنڈی ہو، متکبر ہو، عائل مستكبر ہو، یعنی گھمنڈی فقیر، کچھ نہیں ہے، نہ زمین ہے نہ جگہ ہے، پھر بھی گھمنڈ ہے کہ میں مالداروں کے پاس کیوں جاؤں، میں ان کو سلام کیوں کروں، میں ان کے پاس کیوں جھکوں، میں ان کی بات کیوں مانوں۔ گھر میں ایک وقت کھانا نہیں ہے اور صاحب کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، اس کے باوجود گھمنڈ ہے۔ دولت کے بعد اگر گھمنڈ ہے، چلو ایک فیکٹر ہے کہ مال پہ غرور ہے، گاڑی پہ غرور ہے، 50 کروڑ پہ گھمنڈ ہے، 10 بیگھہ زمین پہ گھمنڈ ہے، اگرچہ گھمنڈ مذموم ہے، گھمنڈی جنت نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ، رائی برابر کسی کے سینے میں گھمنڈ رہے وہ جنت نہیں جائے گا۔ یہ گھمنڈ ہمیشہ برا ہے۔ ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ گھمنڈی سے دوستی نہیں کرتا ہے۔ جس کو حسن پہ گھمنڈ، کپڑے پہ گھمنڈ، لباس پہ گھمنڈ، کھانے پہ گھمنڈ، مکان پہ گھمنڈ، اولاد پہ گھمنڈ، بال بچوں کے حسن پہ گھمنڈ، اپنے بڑے خاندان پہ گھمنڈ ہو، گھمنڈی جنت نہیں جائے گا۔ گھمنڈی کے لیے جہنم بنا ہے۔ حضور فرماتے میں نے جب جہنم میں جھانک کے دیکھا تو دیکھا کہ میں نے جہنم میں اکثر متکبر لوگ ہیں، جہنم میں اکثر بادشاہ قسم کے لوگ ہیں۔ اور حضور نے یہ کہا میری ماں بہن بیٹیاں، آقا فرماتے ہیں تم تو علی باب النار، میں جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا، فرائیت اکثر اہل النساء، میں نے اکثر جہنمی عورتوں کو دیکھا، میں نے کثرت سے عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ کیوں؟ عورتیں لعنت ملامت زیادہ کرتی ہیں، شوہر کی ناشکری زیادہ کرتی ہے، چاہے 25 سال عید میں کپڑا دیتا رہے، ایک بار لاک ڈاؤن کی وجہ سے آمدنی گھٹ گئی، کپڑا نہیں دیا تو فوراً کہتی ہے آپ نے دیا ہی کب ہے جو آپ دیجیے گا، آپ نے دیا ہی کب ہے۔ ان کے ناشکری کی وجہ سے جہنم میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا گیا ہے۔ جنت کے مالک مصطفیٰ کہتے ہیں میں نے جہنم میں جھانک کے دیکھا تو میں نے دیکھا اکثر عورتیں ہیں، عورتیں بے پردگی کی وجہ سے، دوسرے مردوں کو مسکرا کے دیکھنے کی وجہ سے، بے پردہ گھومنے کی وجہ سے، شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے، اور نماز روزے میں سستی کی وجہ سے۔ آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو روزہ رکھتی ہے، یہ روزہ کیا رکھتی ہے، یہ ان کو تو بھوکے رہنے کی عادت ہے، یا اٹھتی ہے صبح 5 بجے، ناشتہ کرتی ہے دن کے 12 بجے، دوپہر کا کھانا کھاتی ہے شام کے 6 بجے، رات کا کھانا کھاتی ہے رات کے 12-1 بجے۔ ان کو تو بھوکے رہنے کی عادت ہے، بھوک کی وجہ سے گیسٹرک کی مریضہ ہیں عورتیں، مردوں کے مقابلے میں 80% عورتیں گیسٹرک کی مریضہ ہے۔ صرف عورت سے لڑائی ہوئی، منہ کھلا کے بیٹھ گئی، اب وہ کھانا چھوڑ دیا، اب چاہے اندر میں لیور کا معاملہ چاہے چوپٹ ہو جائے۔ اگر رمضان کے دن میں ہے تو ٹھیک ہے، رمضان کے علاوہ بندے کو زیادہ دیر تک بھوکا نہیں رہنا چاہیے، رات میں بھوکا نہیں سونا چاہیے، صبح اٹھنے کے بعد فوری کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے، اور فوراً تیل مسالے والا سامان صبح نہیں ڈالنا چاہیے۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اسلامی نقطۂ نظر سے بھی آدمی سب سے پہلے صبح پیٹ میں جو غذا ڈالے وہ کوئی کچی چیز ہو، یعنی سیب ہو، کھیرا ہو، ککڑی ہو، طبیبوں کے نزدیک، حکیموں کے نزدیک یہ ضروری ہے صبح سویرے ان کچے چیزوں سے، نیچرل چیزوں سے آپ کھانا شروع کریں، اور زیادہ دیر میں نہیں، فوری آپ صبح اٹھنے کے بعد، چونکہ آپ 8 گھنٹے سوئے ہیں، اس کے بعد فوری آپ کے پیٹ کو غذا چاہیے، ورنہ گیسٹرک کا مرض ہو جائے گا۔ الحمدللہ 54 ایئرس 54 سال میرے ہو رہے ہیں، اور میں کنٹینیو کبھی ایسی لوگ تو کبھی کھایا نہیں، اب کبھی کبھار کوئی کھلا دیا ہوگا تو وہ الگ
बात है। और गैस्ट्रिक की दवाई मैं आदतन नहीं खाता हूँ, क्योंकि मैं मामूल के मुताबिक फजर के बाद जब घर में रहता हूँ तो 2-4 किलोमीटर वॉक करता हूँ। उस वॉक करने के दरमियान में बहुत सारी नफल इबादतें भी हो जाती है और वॉकिंग भी हो जाती है। रात में खाना खाने के फौरन बाद ही सोना चाहिए। आदमी को कम से कम आधा घंटा वॉक करना चाहिए, बगैर दवाई के अपनी बीमारी का इलाज करना चाहिए। मिस्र का बादशाह पैगंबर आजम के पास कुछ तोहफा भेजा था और एक डॉक्टर का तोहफा भेजा था। हुजूर ने दूसरा तोहफा कबूल कर लिया और डॉक्टर को यह कह के वापस कर दिया कि हमारे यहाँ के लोग जब भूख लगती है तब खाते हैं, अभी भूख बाकी रहती है खाना छोड़ देते हैं। इसलिए मदीने के लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, इसलिए हमें डॉक्टर की हाजत नहीं है। हिकमत क्या है? जब भूख लगे तब खाओ, अब भूख रहे खाना छोड़ दो। यहाँ नाश्ता खाया है 5 रोटी, अब दोपहर के टाइम जोहर के बाद भूख नहीं लगी है, पर फिर भी दबा दिया यहाँ गले तक ताकि वोमिटिंग हो जाए। अभी 4 घंटे के बाद मगरिब बाद खाया, अब दावत हुई चला गया, बस डॉक्टर बोला खीर मत खाना वरना शुगर का लेवल बढ़ेगा। अब खीर नसीज बनी है दबा दिया, बिरयानी बनी है दबा दिया। अपने घर में 1-आधा केजी गोश्त में 10 परिवार खा लिए। अब वलीमा में लग गए, वहां बारात में गए, अब वहां 1 केजी गोश्त अकेले खा गए। अब उसके बाद कल दवाई की टिकिया लेके घूम रहे हैं। सेहतमंद रहने का राज है कम खाना, जब भूख लगे तब खाना, और भूख रहे खाना छोड़ देना। और रात में भूखा सोने वाला वह जल्दी भूखा हो जाएगा, ये भी हिकमत का हिस्सा है। सुबह सवेरे देर से खाने वाला वह जल्दी उसकी हड्डी कमजोर हो जाएगी, मैदा कमजोर हो जाएगा। इस्लाम में सारी बातें खोल खोल कर बयान कर दी गई है। ये हमारी माँ है, शौहर की नाशुक्री करती हैं, लानत मलामत करती हैं, रोजा रखती हैं। क्यों? ये बीवी सैयदा का रोजा तो फला का रोजा, ये साबान का रोजा तो रजब का रोजा तो फला का रोजा, ये तो भूखे रहती है डेली। चलो रोजा की नियत कर लिया, और क्या बात? असर है रोजा से ज्यादा नमाज पढ़ना कमाल है। रमजान का रोजा फर्ज है, ये साहब मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा फर्ज नहीं है, रख लिया अच्छा है, नहीं रखा कोई गुनाह नहीं है। 27 रजब का रोजा रख लिया अच्छा है, नहीं रखा कोई गुनाह नहीं है। रजब की 1 तारीख का रोजा रख लिया अच्छा है, नहीं रखा कोई गुनाह नहीं है। जो फर्ज है उसको अदा करना चाहिए, फर्ज छोड़कर कोई नफल अदा करे कुछ नहीं होगा। रमजान के दिनों में मेरी माँ बहन बेटियां जो बारी के दिनों में गुजरती हैं, जिन दिनों में रोजा नहीं रखा जाता है, नमाज तो माफ है मगर रोजा माफ नहीं है, उन दिनों का रोजा बाद में जब वह पाक हो जाए रखना फर्ज है। अगर नहीं रखेंगी तो अगले साल का फर्ज रोजा उसका मुअल्लक रहेगा, जब तक कि वह बाकी कज़ा रोजे को अदा न कर ले। इसमें 90% औरतें फेल हो जाएंगी। वो अगला तो रख लेती है, फिर बारी के दिन शुरू हो गए, रोजा छोड़ दिया। अब पिछले रमजान का 10-20 साल के रमजान के रोजे की कज़ा है उसको नहीं अदा करती है। इसलिए अगर आप ये बोलते हैं कि वह हर महीने 5 रोजा रखती हैं, इसको कोई उसको माना नहीं जाएगा। रमजान के रोजे का क्या हाल है? जो रोजा रखे फर्ज है रखें, और जिन दो बारी के दिनों में है उसको फौरी रमजान के बाद वो रख लें। तो औरतें कसरत से जहन्नम में देखी गई है। इसलिए आका फरमाते हैं, ए औरतों सदका और खैरात ज्यादा क्या करो, क्योंकि मैंने तुझको जहन्नम में ज्यादा देखा है। ये बेपर्दगी की वजह से जहन्नमी है, नाशुक्री की वजह से जहन्नमी है, नमाज के मामले में सुस्ती करने की वजह से ये ज्यादा जहन्नमी है। लोग दौलतों की हवस करते हैं। आका फरमाते हैं, जब मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हुआ और मैंने जन्नत में झांक के देखा तो मैंने देखा अक्सर जन्नती गरीबों फकीर और फकीर है, गरीब और फकीर से जन्नत भरी हुई है, जिसको दुनिया में कोई वैल्यू नहीं दिया जाता था। ये नमाज रोजे करने वाले फकीर मालदारों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत चले जाएंगे। मालदारों से हिसाब होगा कि तुम पर ज़कात फर्ज होगी, तुमने निकाला या नहीं निकाला। तुम पर हज फर्ज हुआ 15 साल पहले, तुमने 15 साल लेट क्यों किया? तुमने सदका तो खैरात करने में सुस्ती क्यों की? तेरा भाई बीमार था, तेरे पास खरबों की दौलत थी, उसके इलाज कराने के लिए तुमने क्या पहल की? अमीरों को हिसाब के लिए रोक लिया जाएगा। जो अमीर जन्नत जाएंगे उसकी बात है, जो जहन्नमी है तो जहन्नमी है। जो जन्नत जाएंगे उनको हिसाब के लिए रोका जाएगा, क्योंकि गरीबों फकीरों पर न हज फर्ज है, न ज़कात फर्ज है, न सबके फित्र वाजिब है, न कुर्बानी वाजिब है, न गरीबों फकीरों के इलाज कराना जरूरी है। वो तो नमाज पढ़ा रोजा रखा जिसमें पैसा नहीं लगता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, नमाज पढ़ा रोजा रखा, न ज़कात फर्ज है, न हज फर्ज है, न उस पर सदका तो खैरात फर्ज है, बल्कि वो नमाज रोजे के मामले में जवाब देने में वो छुट्टी पा गए। 500 साल पहले
अमीरों के मुकाबले में फकरा जन्नत चले जाएंगे। गरीबी अगर तकवा है तो फिर वही गरीबी बात से फख्र है, जन्नत जाने का सबसे बड़ा जरिया है। अगर मालदारी में तकवा है, मालदारी में अल्लाह का डर है, यहाँ निगाहों की हिफाजत है, शर्मगाहों की हिफाजत है, अपने सीने पर पत्थर रखकर इज्जत की हिफाजत की गई है, तो फिर ये मालदार हिसाब देंगे, देने के बाद जन्नत जाएंगे। दुनिया में भी खुश रहे, अच्छा खाते रहे, अच्छा पहनते रहे, करोड़ों के बंगले में रहे, क्योंकि यहाँ पे तहाशा खर्च किया, सदकात के नाम पे, खैरात के नाम पे, नफ्ल खैरात के नाम पे, फर्ज ज़कात अदा करने के नाम पे दौलतें दी थी अल्लाह ने। 2 लाख मस्जिद में, 2 लाख मदरसे में, 2 लाख मस्जिद में, 2 लाख उलमा को, 2 लाख का कम्बल गरीबों में बांटा, खूब बांटा। पूरे गांव वालों को इफ्तार करवाया, सदका तो खैरात किया, गरीबों की बेटियों की शादी में मदद की। तो अब ये जन्नत खरीद लिया। गरीब चाह करके भी मस्जिद में 1 लाख नहीं दे पाएगा, गरीब बेटी की शादी नहीं करवा पाएगा। तो जहां दौलत है, अगर हलाल की दौलत है, वहां तकवा है, अल्लाह का डर है, तो यहाँ भी वारे नियारे हैं, मरने के बाद ही मुस्तफा की जन्नत में है। अगर जहां गरीबी है, वहां तकवा है, परहेजगारी है, तो फिर मालदारों के मुकाबले में 500 साल पहले वो जन्नत जाएंगे, भले ही दुनिया में तकलीफ रही हो। लेकिन अगर गरीबी में इबादत नहीं है, यहाँ भी दाने दाने को तरसेंगे, यहाँ भी दाने दाने को तरसेंगे, यहाँ भी खाने का मजा नहीं मिलेगा, ना अच्छा घर, ना अच्छा खाना, ना अच्छा कपड़ा, ना इज्जत की निगाह से समाज में देखा जाना, यहाँ भी तड़पता रहेगा, मरने के बाद जहन्नम की आग में झुलसता रहेगा। जबकि तकवा अगर वहां है तो गरीबी नेमत है, मालदारी के मुकाबले में ज्यादा, चूंकि वहां इबादत ज्यादा है, हज है, फर्ज ज़कात है, उस पर अदायगी में सुस्ती हुई, बस सीधे जहन्नम। तकवा हर